हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं लैब का सेशन आप लोगों का आज है, तो हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल देखेंगे। प्रोसीजर को आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे और देखेंगे कि किस तरह से प्रैक्टिकल किया जा रहा है। फिर आप लोग अपनी लैब में भी वैसे ही प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। ओके, तो लास्ट सेशन में हमने मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन सीखा था कि कैसे किसी सब्सटेंस का आप लोग मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिन करेंगे। वही आज के सेशन में कंटिन्यू करते हैं। आप लोग वीडियो देखेंगे और थोड़ा हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव था टू डिटर्मिन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको मेल्टिंग पॉइंट पता करना होता है, वही हम इसमें सीख रहे थे। पढ़ लिया था आपने मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, फैक्टर क्या क्या होते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं। तो आपने साइज ऑफ द मॉलिक्यूल देखा था कि मॉलिक्यूल का साइज अफेक्ट करता है। इसके अलावा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है वो आपको यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको अफेक्ट करता है। ओके, तो साइज में आपने क्या देखा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है, लेकिन वहां पर अगर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ रहा है, एटम्स की पोजीशन में चेंज आ रहा है किसी भी तरह का, तो आपका मेल्टिंग पॉइंट इन्फ्लुएंस हो जाएगा या फिर चेंज हो जाएगा। ओके, दूसरा आपने क्या बोला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या करता है, जितना ज्यादा अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आएगा। वीक अट्रैक्शन फोर्स होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आपने प्रोसीजर को अच्छे से फॉलो किया था। देन एनिमेटेड वीडियो आपने देखी थी, सिमुलेटर पे हम लोगों ने काम किया था। वीडियो आप लोग यहाँ पर अभी देखेंगे। Melting point of an organic compound. The melting point of a solid is defined as the temperature at which the solid exists in equilibrium with its liquid under an external pressure of 1 atmosphere. On heating a solid, its molecule absorbs energy in the form of heat. As a result, the force of attraction between the molecules decreases and the molecules become increasingly separated. At a particular temperature, called the melting point of the solid, the separation of the molecules increases by a large amount and the solid melts and is converted into liquid. Our aim here is to determine the melting point of the given compound, naphthalene. Materials required: liquid paraffin in a 100 ml beaker, powdered naphthalene, thin-walled capillary tube of approximately 8 to 10 centimeters length and 2 millimeters diameter, thread, glass plate, thermometer, stand with clamp, stirrer, spatula, hot plate. Procedure: take a capillary tube and seal one end by heating it in the flame of the Bunsen burner. Now, using the spatula, make a heap of the powdered naphthalene on the glass plate. Push the open end of the capillary tube into the heap. Some substance will enter into the capillary tube. Now, tap the sealed end of the capillary tube on the glass plate gently and fill the capillary tube up to 2 to 3 millimeters. Attach the capillary tube to the thermometer using the thread. Take the 100 ml beaker containing liquid paraffin and place it over the hot plate. Insert the stirrer in the liquid paraffin bath. Clamp the thermometer carrying the capillary tube to the iron stand and immerse them in the bath of the liquid paraffin. Start heating the liquid paraffin bath slowly and stir the bath gently using the stirrer to ensure uniform heating. Note the temperature T1 when the naphthalene starts melting. Continue heating and note the temperature T2 when the naphthalene in the capillary tube is completely melted. The average of the two temperatures T1 and T2 gives the melting point of naphthalene. Precautions: use dry and powdered sample for the determination of melting point. Packing of the powder should be uniform without any big air gaps between the solid particles.
The liquid paraffin bath must be heated very slowly and the bath is stirred gently to ensure uniform heating. The bulb of the thermometer and the capillary attached to it should not touch the sides or the bottom of the beaker. चलिए, तो ये मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन आप लोगों ने देख लिया कि मेल्टिंग पॉइंट कैसे निकाला जाता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर मेल्टिंग पॉइंट निकालने के लिए बोला जाएगा, कोई भी सब्सटेंस दिया है उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, कैपिलरी ट्यूब लेनी है, उसमें उसको भर देना है 2 to 4 mm। देन उसको थर्मामीटर से आप लोग क्या कर लेंगे, टाई कर लेंगे। उसको क्लैम्प की हेल्प से थर्मामीटर जो आपने पैराफिन लिक्विड लिया है बीकर में, उसमें आप डिप करके रखेंगे और फिर उस पूरे सेटअप को किसी भी हीटिंग मीडियम के पास रख लेंगे, चाहे आप हीटिंग मेंटल का यूज कर रहे हो या फिर आप बर्नर का यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर रख लेंगे ताकि उसको हीट करें आप धीरे धीरे। यूनिफॉर्म हीटिंग के लिए आप क्या करेंगे, स्टरर का यूज करेंगे कि टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहे। देन जिस भी फर्स्ट पॉइंट पर आपका वो जिस टेम्परेचर पे वो पिघलना शुरू करेगा वो टेम्परेचर नोट कर लेंगे और जहां पर वो कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, वो टेम्परेचर नोट करेंगे। तो 2 टेम्परेचर नोट कर लिए, दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। ये आपका क्या आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा उस गिवन सब्सटेंस का। ओके, चलिए, और हमें आज के सेशन में बात करनी है बॉइलिंग पॉइंट की। ओके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव लिखिए, टू डिटरमिन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए थ्योरी की बात करते हैं। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, नाम से ही समझ आ रहा है, एक ऐसा टेम्परेचर होगा जहां पर आपका बॉइल हो रहा है सब्सटेंस। कैसा सब्सटेंस होगा, लिक्विड होगा, ऑब्वियस सी बात है। जब बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वो लिक्विड स्टेट में होगा। लिक्विड से कौन से स्टेट में जाएगा, आपकी गैसियस स्टेट में जा रहा होगा। ठीक है, तो वही टेम्परेचर आपने नोट करना है। बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आपके क्या है, जब फिजिकल स्टेट का चेंज हो रहा है। ठीक है ना, फिजिकल स्टेट जैसे ही चेंज हो रही है तो वो टेम्परेचर आप लोग नोट कर रहे हो। ओके, so the boiling point of organic compounds can give important information about their physical properties and structural characteristics। किसी भी कंपाउंड का जब आप बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं तो वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई या स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, उनके बारे में। बॉइलिंग पॉइंट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड कैरेक्टराइज अ कंपाउंड। बॉइलिंग पॉइंट आपको किसी भी कंपाउंड के को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इसके अलावा लिक्विड बॉइल्स व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर इज डिटरमिन्ड बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। ओके, अ लिक्विड बॉइल्स, कोई भी द्रव तब बॉईल होता है व्हेन इट्स वेपर प्रेशर, जब उसका वाष्प दाब जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ओके, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, वो किस पर निर्भर करती है, आपकी तापमान हो गया, द्रव्यमान हो गया, और जो उसका वेग है वहां पर मॉलिक्यूल का, उन सब पर निर्भर करती है। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आल्सो इंक्रीजेज। जब आपका तापमान बढ़ता है तो उसके साथ साथ क्या होगी, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, औसत गतिज ऊर्जा है कणों की, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। व्हेन द टेम्परेचर रीचेज द बॉइलिंग पॉइंट, जब आपका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी बिकम सफिशिएंट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है यानी औसत गतिज ऊर्जा है, वो कितनी हो जाती है, वो उतनी हो जाती है जिससे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर उससे ऊपर चला जाए या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ पाए बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल्स, द्रव के कणों के मध्य। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात आप मेल्टिंग पॉइंट में भी कर रहे थे, वहां पर भी सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। ऑब्वियस सी बात है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेंगे तभी सॉलिड से लिक्विड में आपका जो सब्सटेंस है वो जाएगा। वैसे ही आप यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जैसे ही कन्वर्जन होगा, कब होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका वहां पर टूटेगा। ओके, उसके बाद as the force of attraction decreases, the molecule in the liquid state escape from the surface and turns into gas। okay, जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है काइनेटिक एनर्जी से, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, लिक्विड स्टेट से आपका कहाँ चला जाएगा, गैसियस स्टेट में चला जाएगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड वेरीज विद द सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अ लिक्विड एट अ हायर प्रेशर हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन व्हेन दैट लिक्विड इज एट लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, क्या कहा गया है इसमें, देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड वेरीज विद द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर।
प्रेशर, ओके। जो उसके सराउंडिंग्स का, उसके आसपास का जो भी वायुमंडलीय दाब है, अगर वो वेरी कर रहा है, वो चेंज हो रहा है, तो उसके साथ साथ आपका बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होगा। और कैसे चेंज होगा? अ लिक्विड एट अ हाइयर प्रेशर, जो लिक्विड आपका हाइयर प्रेशर पर है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा व्हेन दैट लिक्विड इट एज अ इज एट अ लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ रहे हैं? यानी कि जितना ज्यादा दबाव है बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा है, और कम दबाव है तो बॉइलिंग पॉइंट आपका कम हो रहा है। द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ कंपाउंड इज एन इंडिकेटर ऑफ द वॉलेटिलिटी ऑफ दैट कंपाउंड, यानी वॉलेटाइल है वो नेचर में, ओके। द हाइयर द बॉइलिंग पॉइंट द लेस वॉलेटाइल इज द कंपाउंड, ओके। जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है उतना कम वो क्या है? वाष्पशील होगा, ओके। Conversely, the lower the boiling point, the more highly volatile is the compound. जितना कम आपका बॉइलिंग पॉइंट आएगा उतना अधिक वो वाष्पशील यौगिक होगा, ओके। एट अ गिवन टेम्परेचर, इफ अ कंपाउंड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर, देन दैट compound will generally exist as a gas at atmospheric pressure. If the boiling point of the compound is higher, it then exists as a liquid or a solid, okay. क्लियर है इतना? व्हाट आर द जनरल ट्रेंड्स दैट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट? जैसे आपने मेल्टिंग पॉइंट में पढ़ा था कि कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट को, वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट को भी कुछ चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो अंतरा आणविक बल है वहां पर, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके अनुसार भी आप बताएंगे कि बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से बदल रहा है। सो द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सच एज आयनिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एंड वॉन डेर वाल डिस्पर्सन फोर्स affect the boiling point of a compound. The influence of these forces depend on the functional group present. ये बॉन्ड किस तरह से आपका पूरे बॉइलिंग पॉइंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है वहां पर, ओके। वी कैन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ दीज फोर्सेज ऑन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे ब्यूटेन है आपका, डाइथाइल ईथर है, एन ब्यूटेनॉल है और सोडियम एन ब्यूटॉक्साइड है। तो इनके आपको मॉलिक्यूलर वेट दिए गए हैं यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या क्या है? जैसे ब्यूटेन में आपका वॉन डेर वाल है, डिस्पर्सन फोर्स। डाइथाइल ईथर में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, एन ब्यूटेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और सोडियम एन ब्यूटॉक्साइड में आपका क्या हो रहा है? आयनिक बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट उनके दिए गए हैं। ब्यूटेन का देखो कितना कम है, उससे थोड़ा अधिक किसका है? आपके डाइथाइल ईथर का है, और एन ब्यूटेनॉल का फिर उससे अधिक है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। सोडियम एन ब्यूटॉक्साइड का सबसे अधिक है क्योंकि उसमें आयनिक बॉन्डिंग है। तो मेल्टिंग पॉइंट में भी आपने यही बोला कि जो आयनिक कंपाउंड है उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर भी वही आ रहा है। सो एन ब्यूटेन C4H10 कंटेन्स नो पोलर फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि उसमें कोई ध्रुवीय आपका फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्रियात्मक समूह नहीं है। सो द ओनली अट्रैक्शन बिटवीन द ब्यूटेन मॉलिक्यूल इज वीक वॉन डेर वाल डिस्पर्सन फोर्स, ओके। तो वहां पर एक ही इंटरेक्शन आपको देखने को मिलता है जो कि आपका दुर्बल प्रकृति का वॉन डेर वाल डिस्पर्सन फोर्स है, ओके। द रिजल्ट इज दैट ब्यूटेन बॉयल एट अ टेम्परेचर एट विच वाटर फ्रीजेस। तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है कि ब्यूटेन उस टेम्परेचर पर उबल जाता है जहां पर कि आपका पानी क्या हो रहा है? जम रहा है। कितना कम टेम्परेचर है? -1 to 1 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर आपकी पानी बर्फ बन जाती है। तो वही बोल रहे हैं कि इतना कम तापमान पर, क्योंकि वहां पर वीक वॉन डेर वाल फोर्सेज हैं, तो उनके कारण क्या हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो जा रहा है। इतना कम कि जिस तापमान पर आपका पानी बर्फ बनता है उस तापमान पर वो उबलना शुरू कर रहा है, ओके। एंड इज मच लोअर देन डाइथाइल ईथर, और ये डाइथाइल ईथर से बहुत कम है। इन द केस ऑफ डाइथाइल ईथर द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन विच अराइजेस ड्यू टू द पोलराइज्ड CO बॉन्ड, ओके। यहाँ पर हो क्या रहा है? पोलराइजेशन हो रहा है CO बॉन्ड का, जिसकी वजह से ब्यूटेन से थोड़ा अधिक है बॉइलिंग पॉइंट, जो कि आपका कितना आ रहा है? 35 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। कंपेयर इट्स बॉइलिंग पॉइंट विद दैट ऑफ एन ब्यूटेनॉल। अगर आप एन ब्यूटेनॉल के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं बॉइलिंग पॉइंट का, सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन ब्यूटेनॉल इज 117 डिग्री सेल्सियस। तो ब्यूटेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कितना है? 117 डिग्री सेल्सियस है। द ग्रेटली इंक्रीज्ड बॉइलिंग पॉइंट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ब्यूटेनॉल कंटेन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओके। तो ये सबसे पहले बताया गया था कि इंटरेक्शन जो हो है वहां पर मॉलिक्यूल के बीच में, वो
इन्फ्लुएंस हो रहा है किसके कारण, जो वहां पर फंक्शनल ग्रुप हैं उनके कारण। तो यहाँ पर OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, जिसके कारण डाई इथाइल ईथर से, और अगर एन ब्यूटेनॉल को आप कंपेयर करें तो दोनों के बीच में डाई इथाइल ईथर के बाद एकदम शार्प इंक्रीज दिखता है बॉइलिंग पॉइंट में, अगर आप एन ब्यूटेनॉल की बात करें तो उसमें। ओके, विच इज केपेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोक्सिल ग्रुप में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना अधिक है। बट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोडियम ब्यूटॉक्साइड इज हाइयर देन दैट ऑफ ब्यूटेनॉल बिकॉज द अट्रैक्टिव फोर्स is in sodium butoxide is very strong ionic bond. Okay, लेकिन अगर आप एन ब्यूटेनॉल की तुलना में सोडियम एन ब्यूटॉक्साइड को देखते हैं तो वहां पर और ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में आपको इंक्रीज होता हुआ दिखता है, यानी कि बहुत अधिक बॉइलिंग पॉइंट उसका है क्वथनांक, जो कि किसकी वजह से है, आयनिक बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट में भी सेम यही आपका पैटर्न था, या आप कह सकते हैं यही ऑर्डर था, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होने का, और बॉइलिंग पॉइंट पे भी वही है। ठीक है, तो यहाँ पर द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस गो इन द ऑर्डर, सबसे अधिक होगा आयनिक का, फिर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, देन डाइपोल डाइपोल, और सबसे कम किसमें होगा, वॉन डेर वाल डिस्पर्सन फोर्स में। ओके, तो ये आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन चेन। ठीक है, कार्बन कार्बन की श्रृंखला कैसी है, कितनी बड़ी है, वो किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट कर रही है, इस पे बात करेंगे। ओके, एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज और द लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन चेन इंक्रीजेज, द बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे या कार्बन की श्रृंखला बढ़ेगी, लंबी होगी, वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स increases as the molecule gets longer and has more electrons. Okay, ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि श्रृंखला बड़ी हो रही है, श्रृंखला के बड़े होने से आपका अट्रैक्शन फोर्स वहां पर मॉलिक्यूल के बीच बढ़ रहा है, और क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया है तो आपको ज्यादा टेम्परेचर या ज्यादा हीट देनी पड़ेगी उसको उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज लाने के लिए। ओके, और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाएगी। इट टेक्स मोर एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सो द बॉइलिंग पॉइंट राइजेस। ओके, इसको अट्रैक्शन फोर्स के ऊपर अपना जो एनर्जी है वो देने के लिए समय लगेगा या तापमान अधिक लगेगा, इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कुछ कंपाउंड्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे एल्केन की बात हो रही है, अल्कोहल की बात हो रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईथर है, अलग अलग कंपाउंड है आपके, और उनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग आपको बताए गए हैं। ठीक है, तो ये एल्केन में आपके अलग अलग कंपाउंड है ये सारे। तो देखो कार्बन की श्रृंखला बढ़ रही है, तो पहले आपका -42 डिग्री सेल्सियस था, देन यहाँ पर चेन लंबी हुई -1 डिग्री सेल्सियस, बढ़ रहा है ना तापमान, फिर श्रृंखला और बड़ी हो गई, तो क्या हो गया 36.1 डिग्री सेल्सियस, और श्रृंखला बड़ी हो गई, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ गए तो 69 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल में भी यही हुआ, 97 डिग्री सेल्सियस इसका है, देन यहाँ पर कार्बन चेन लंबी हुई 118 डिग्री सेल्सियस, और लंबी हुई 138 डिग्री सेल्सियस, और कार्बन की श्रृंखला लंबी हो गई है 158 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट चला गया है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं, या आप बोल सकते हो कि कार्बन चेन लंबी हो रही है, श्रृंखला में वृद्धि हो रही है आप बोलेंगे, तो वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है इसका। ओके, इस टेबल को नोट कर लेंगे जल्दी से। ये आपके कंपाउंड्स हैं अलग अलग। ये तो हमने श्रृंखला की बात की, श्रृंखला में ये तो हमने सीधी जो आपकी किसकी बात कर रहे हैं आप, सीरीज बात कर रहे हैं, उसमें आपने क्या कहा कि जो भी आपका कंपाउंड है अगर उसमें कार्बन चेन में वृद्धि हुई तो आपका क्या हो रहा है, चेन लंबी हो रही है ना आपकी, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। दूसरा आपका क्या है, अगर ब्रांचिंग हो रही है, ब्रांचिंग डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट, अगर शाखा में आपके कोई एटम चला गया है या ब्रांचिंग बहुत ज्यादा हो गई है मॉलिक्यूल में, तो वो क्या कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज कर दे रहा है। एज द लेंथ ऑफ कार्बन चेन इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द कंपाउंड विल आल्सो इंक्रीजेस, वॉन डेर वाल्स dispersion force is proportional to the surface area, so the increase of surface area increases the ability of individual molecule to attract each other. Branching in molecule decreases the surface area, जैसे जैसे ब्रांचिंग हो रही है, देखो इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा था, यहाँ पर सरफेस एरिया कम हो गया, ब्रांचिंग सरफेस एरिया को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है, देयर बाय डिक्रीजिंग द अट्रैक्टिव फोर्स,
जिससे कि आकर्षण बल भी डिक्रीज हो जाएगा और वहां पर क्या होगा, एज अ रिजल्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा. कंसीडर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन पेंटेन एंड नियोपेंटेन, दैट इज 2,2-dimethyl propane. These are isomers having the same molecular formula C5H12 but differ in their structure, so their boiling point also changes. Okay, इसकी वजह से उनके boiling points भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं. ओके, तो यहाँ पर हुआ क्या, एक एन पेंटेन है आपके पास सीधी श्रृंखला, एक आपके पास नियो पेंटेन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C5H12, 5 कार्बन है 12 हाइड्रोजन से जुड़े हुए. ओके, बट डिफर इन देयर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखने को मिल रहा है. नियो पेंटेन में आपको क्या दिख रही है, ब्रांचिंग दिख रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा. सरफेस एरिया डिक्रीज किया तो यानी अट्रैक्टिव फोर्स है जो बिटवीन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, वो भी डिक्रीज कर जाएगा. उसके डिक्रीज होने से आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. इसीलिए एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट आपका 36 डिग्री सेल्सियस है, जबकि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नियोपेंटेन का है लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट 9 डिग्री सेल्सियस है. तो इतना डिफरेंस आपको किसकी वजह से देखने को के लिए मिला, ये ब्रांचिंग की वजह से देखने को मिला. ठीक है ना, क्योंकि ब्रांचिंग आ गई है नियोपेंटेन में, तो उसकी वजह से क्या हो गया, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नियोपेंटेन इज मच लोअर देन दैट ऑफ एन पेंटेन. ओके, चलिए, तो ये आपका थर्ड पॉइंट था. फोर्थ है आपका पोलैरिटी. पोलैरिटी से भी आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन्फ्लुएंस्ड होगा. पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल डिटरमिन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इन द लिक्विड स्टेट. In polar compounds, the positive end of one molecule is attracted by the negative end of another molecule. That means polar molecules are attracted by opposite charge effect. The polarity of molecule is determined by its functional group. The greater the polarity, the higher is the boiling point. Okay, जितना ज्यादा ध्रुव वहां पर बनेंगे, या आप क्या कहेंगे, जितनी अधिक पोलैरिटी वहां पर होगी उतना ही अधिक बॉइलिंग पॉइंट होगा. क्लियर. चलिए, तो कोई भी मॉलिक्यूल आप देखते हैं, अगर वहां पर एक पॉजिटिव एंड है दूसरा नेगेटिव एंड है, तो वहां पर पोलैरिटी बनती ही है. या आप क्या कहते हैं, पोलार होने की वजह से वहां पर अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग हो जाता है, चार्ज इफेक्ट आपको देखने होता है. या आप कहते हैं कि ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वहां पर. इसकी वजह से आप क्या कह रहे हैं, जितना अधिक पोलार होगा आपका मॉलिक्यूल उतना अधिक उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा. नाउ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गिवन बिलो. यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स के आपको बॉइलिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे बेंजाइल अल्कोहल का है, ग्लिसरॉल, इथाइलिन ग्लाइकोल, फिनॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, बेंजल्डिहाइड, एसिटोफिनॉन, फिनाइल एसीटेट, इथाइल बेंजोएट, मिथाइल सैलिसिलेट, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, ऑर्थोटोलिडीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बेंजोइल क्लोराइड. ओके, तो इन सभी कंपाउंड्स के आप बॉइलिंग पॉइंट्स नोट कर लेंगे. आने वाले सेशन में हम लोग एनिमेटेड वीडियो पर बात करेंगे. ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा. आज के सेशन में हमने मेल्टिंग पॉइंट का एक वीडियो देखा है, कैसे मेल्टिंग पॉइंट निकाला जाएगा, और दूसरा हमने बॉइलिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन स्टार्ट किया है कि किसी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिटरमाइन करेंगे. यहाँ पर थ्योरी हमने पढ़ी बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, साथ ही उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. आने वाले सेशन में हम प्रोसीजर देखेंगे, साथ ही एनिमेटेड वीडियो देखेंगे और सिमुलेटर पे काम करेंगे. तब तक यहाँ तक अच्छे से अपना प्रैक्टिकल वर्क कर लेंगे. जितने प्रोसीजर बताए गए हैं वो लैब में परफॉर्म कर लेंगे. कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे. और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद.